Forum is starting a residential program and specifically designed for those students who didn't clear prelims earlier. At that moment, I felt that this program is tailor-made for you because what you described in that email, it felt like somebody was describing me. नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँ, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। और हर माता पिता करता है ना, कौन नहीं करता है सर, कौन नहीं चाहता है सर। Fortunately, sir, I cleared prelims and then, sir, the same schedule for mains FRC4 started at the same place and again I made the same promise. चाहे वो AWFG का टेस्ट हो या SFG का हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, I'll do it, सब कुछ करूँगा जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा है. And fortunately it worked again. Then I stayed there for interview also and fortunately I got the rank. And before coming to FRC, literally there was a lot of broken confidence and I thought I would never be able to clear pre. This is the biggest hurdle of my life. But then ever since December, things changed and I just followed the plan to the hilt. Gave every test, even the open test, all the simulators, the CSAT simulators also. It was for the first time that I cleared the prelims, I cleared the mains, and then I cleared the interview and finally got a job under Government of India. I was a part of FRC1 and FRC4. So I think FRC played an instrumental role in making me what I am today. So I was scared, very honestly. I think a lot of my motivation for so many things is just a fear of failure. I'm not sure what a therapist or a psychologist might say about that. मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं ऐसे पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखी है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 301 रैंक आई है UPSC CSE 2025 में। So first is a sense of discipline, whether that's SFG or sometimes that I followed in AWFG also for the mains part. A sense of discipline that this is the target for the day. You got to complete your syllabus, immaterial whether you're completing 80%, 70%, 100%, but you have to come up, show up every day and write the test. Many congratulations to all of you who have cleared the prelims. Let us give them a big hand. I subscribed to the second level of SFG. I think I told you so. I'd gotten to know about sir from a very close friend, which was honestly like my paradigmatic change, if you will call it, towards prelims preparation came when I heard sir speak on prelims. सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आज हमारे साथ निखिल हैं। आई थिंक 2023 के समय प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो बहुत दुखी थे, बट कई बच्चों में जिनका सिलेक्शन नहीं होता, इनके साथ यूनिक बात ये थी कि ये प्रीलिम्स से ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। 23 से 24 की बात होगी थे और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आई वॉज डूइंग वेरी वेल एंड देन आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। तो ये बातें मैंने कहीं रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी है उनसे, और मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि कई बार मेहनत करने के बाद अगर चीज़ें रुक जाती हैं तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ख़राब रिज़ल्ट हमेशा नहीं होता अगर हमने मेहनत की है तो फिर इन्होंने दोबारा फिर से प्रयास अपना शुरू किया और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने जितना एफर्ट डाला शायद ही उतने बच्चों ने डाला होगा, and he got better with time. So today we have Nikhil with us. Nikhil has secured rank 36 in the Indian Forest Service examination. So first many congratulations Nikhil. Thank you sir, thank you, means a lot. ये जो आपने लाइन बोली थी वो मैंने अपने टेबल के आगे लिखी हुई है। सौभाग्य हर दिन सोता है, और जब भी एग्जाम देता था मैं हर एग्जाम से पहले, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, मैं अपना तो ये बोलता था ठीक इस बार तो हो जाएगा, इस बार आई विल डू माय बेस्ट, सौभाग्य इस बार बेकार नहीं होगा। चलो वंडरफुल। तो निखिल सबसे पहले तो अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? सर आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और पेरेंट्स यूपी से हैं, यूपी में इटावा मैनपुरी से, बट आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैंने स्कूलिंग की है सेंट मेरीज पब्लिक स्कूल से 11th-12th में, एंड देन आई वेंट टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIIT दिल्ली। और स्कूल में कैसे बच्चे थे? एकदम 9 CGPA 10 CGPA वाले बच्चे थे या? सर हमेशा 10 CGPA हमेशा रही है, मैं क्लास टॉपर था हमेशा, और शायद ही तो ऐसी क्लास रही होगी इसमें मैं नहीं था, बट 11th-12th में थोड़ा रिड्यूस हो गया वो। फिर 11th-12th में बिकॉज JEE के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो JEE के लिए फिर स्कूल सही से मैं नहीं दे पा रहा था,
बट ओवरऑल आई वाज अ डिसेंट इनफ स्टूडेंट. सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में पहली बार कब सोचा था आपने? सर सिविल सेवा के लिए मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे पुश करते थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है, बट तब करना है वो नहीं था. बट जब कोविड आया तो उसके बाद मुझे थोड़ा पढ़ने का टाइम मिल गया. स्कूल में और कॉलेज में था उस टाइम पे, मैं 3rd ईयर में, तो उस टाइम पे इतना एकेडमिक बर्डन नहीं था, तो मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद ही मैंने 2022 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया कॉलेज के साथ ही. आई ग्रेजुएटेड इन 2022 और वही मेरा पहला अटैम्प्ट था. तो 2023 में आई थिंक हम पहली बार मिले थे. 2023 वाज द ईयर. तो मतलब पहले तो ये बताइए कि आपने देखा है कि प्रीलिम्स में बच्चे, आपके प्रीलिम्स में अभी जब एग्जाम निकला है तब कितना स्कोर था अराउंड? पिछले 2 साल में कितने स्कोर रहे हैं आपके? सर मेरा 117 था. तो 117, और उसमें कट ऑफ कितना था अराउंड? 88 कट ऑफ था. 88 कट ऑफ था और 107. तो इतने हाई मार्क्स आपके प्रीलिम्स में कैसे आए? सर एक जो रीज़न था वो ये था कि 2023 वाले अटैम्प्ट में मैं बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था. तो मेरे उस टाइम पे कट ऑफ थी 75, मेरे थे 65, और 65 तब थी जब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने एंड पे. तो एक चीज़ थोड़ी रियलाइज़ हुई थी, जितना मेहनत कर रहा हूँ शायद उतना इनफ नहीं है, और थोड़ी प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट जो हैं जैसे एंशिएंट मेडिवल, ये सारे मैंने छोड़ दिए थे. तो इस बार 2024 अटैम्प्ट के टाइम पे मैंने वो सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़े. SFG लेवल 1 लेवल 2 बहुत अच्छे से किया, डिलीजेंटली किया, एक भी टेस्ट मैंने मिस नहीं किया, और सारा उसके बाद एनालिसिस थियरी कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, और जो भी टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं जैसे कि साइंस एंड टेस्ट और PYQs, वो सभी मैंने बहुत अच्छे से किए. तो एक ये रीज़न था. बाकी मेरा पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा था 2024 में, तो हमेशा ही हेल्थी कॉम्पिटिशन रहता था. तो निखिल ने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में इन्होंने 36 रैंक हासिल की. ये बताइए कि प्रीलिम्स के लिए मतलब आपकी लगभग बुक लिस्ट क्या रही थी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए? अभी आज कोई कॉलेज में अगर बच्चे हैं तो आप क्या कहेंगे कि कैसे प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें? सर वही स्टैंडर्ड बुक्स जो सब फॉलो करते हैं. स्पेक्ट्रम इन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट मिडिवल के लिए सर मैंने 2024 में अपनी बुक लिस्ट चेंज की थी. मैंने पूनम दलाल दहिया नाम की किताब आती है, वो मैंने यूज़ की थी. और फिर पॉलिटी लक्ष्मीकांत, और NCERTs मैंने पढ़ी थी 11-12 की. बेसिकली ज्योग्राफी के लिए मैंने बार बार रिवाइज किया था, बट एक बार गो थ्रू मैंने बाकी भी कर ली थी. और मुझे लगता है कि हिस्ट्री के लिए जैसे एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न के लिए 9th और 10th की NCERT, 8th की NCERT कर सकते हैं. वो भी मतलब काफ़ी हेल्पफुल होती है, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो वही स्टैटिक बुक्स जो नॉर्मली मार्केट में होती है वही फॉलो की, बट उसे बार बार अच्छे से रिवाइज किया, और उससे थोड़े नोट्स भी बनाए मैंने. आपने फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया, और मेरे ख्याल से 2 बार फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया, राइट? और दूसरी बार में आपकी 36 रैंक आई है. तो क्या आपको लगता है कि गलतियां क्या करते हैं बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में? सर पहली जो गलती मुझे लगती है वो है कि करंट तो बहुत ज़्यादा फोकस करना, और स्टैटिक तो निगलेक्ट कर देना. स्टैटिक रिवीजन होता नहीं है, बार बार हम करंट पढ़ते रहते हैं, नई मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, और फोमो में रहते हैं कि कुछ नया सोर्स उठा लेते हैं, जिनकी दोस्त पढ़ रहा है वो सोर्स. तो आई थिंक उस फोमो से बचना चाहिए, और जितने भी लिमिटेड सोर्सेज हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना चाहिए. दूसरी चीज़ है अपने आप को टेस्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा. तो 2024 में एक इतना अच्छा स्कोर इसलिए भी आया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को टेस्ट कर लिया था. तो जब एग्जाम हॉल में गया तो वो नर्वसनेस और प्रेशर नहीं था बिल्कुल भी. ये था कि SFG में और MGP, SFG और सिमुलेटर दोनों में ही इतने अच्छे नंबर आए हमेशा, तो इसमें भी आ ही जाएंगे दोबारा. तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. और अगर पेपर टफ भी आता है तो फिर ये फील होना चाहिए कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा फिर ये. तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. वो आया था नंबर ऑफ टेस्ट से. आप SFG देते थे तो ऑफलाइन देते थे या ऑनलाइन करते थे? ऑफलाइन. ऑफलाइन. 2024 मैंने सारा ऑफलाइन किया. 2025 में क्योंकि इंटरव्यू की वजह से टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने ऑनलाइन किया. तो आप मतलब यहाँ राजेंद्र नगर में रह के तैयारी कर रहे थे या कम्यूट करते थे? मतलब राजेंद्र नगर. ओके. तो ये सुबह दिसंबर में सुबह 7 बजे ये सब टेस्ट होते हैं, और उसके बाद 8 बजे क्लास रहती है. तो इतनी सुबह उठने में आपको डिस्कम्फर्ट या परेशानी या थोड़ा गुस्सा नहीं आता था कि ये टाइमिंग इतनी ऑड क्यों है? होता था सर. फिर ये सोच लेता था कि अगर नहीं हो रहा तो और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा, तो करना तो है ही है, ठान लिया है तो फिर वही सुबह शेड्यूल बन गया था बहुत अच्छा. दोस्त भी थे बहुत अच्छे, तो साथ में जाते थे, तो तभी इतना फील हुआ नहीं. शुरू में होता था, बट फिर ग्रेजुअली विद टाइम थोड़ा कम होने लग गया है, और थोड़ा फिर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि सुबह अच्छा काम कर लिया है, टेस्ट लिख लिया है, तो उसके बाद फिर दिन अच्छा जाता है. प्रीलिम्स पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मतलब इन द पेपर हाउ डिड यू अटेम्प्ट द पेपर? सर स्ट्रैटेजी मैंने 2024 वाले अटेम्प्ट में थोड़ी सी बदली. मैंने इस बार पहली आइट्रेशन जो है वो 1 घंटे में करने का सोचा था, बिकॉज मुझे लगता है कि जब प्रीलिम्स हम पेपर देते हैं ना, तो हमें लगता है कि पेपर बहुत टफ आया है, बट विद सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग लगता है यार पेपर तो डुएबल था, शायद मुझसे ही उस टाइम पे नहीं हुआ. तो मैंने सोचा था एग्जाम हॉल के अंदर ही मैं 2 या 3 बार पेपर देख लूँगा,
तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी ये था कि मैं पहले आइट्रेशन बहुत जल्दी कर लेता। तो आई डिड दिस, फर्स्ट आइट्रेशन आई कंप्लीटेड इन 1 आवर एंड सेकंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन फिर दोबारा जल्दी हो जाता है। और अटैम्प्ट भी मैंने देखा था कि इफ़ आई अटैम्प्ट अराउंड 90 क्वेश्चंस तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो मोर और लेस अगर पेपर बिल्कुल अजीब नहीं आ गया जैसे 2023 वाले अटैम्प्ट में था, तो आई वुड अटैम्प्ट इन अ सिमिलर रेंज 90-95 के आसपास। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने फॉलो की अच्छे से। कई लोग कहते हैं कि टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए, कई लोग कहते हैं PYQs करने चाहिए, और कई लोग कहते हैं स्टैटिक बुक्स रिवाइज करनी चाहिए। तो आप इनमें से तीनों में से क्या करते थे? सर मैं तीनों ही करता था और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SFG के साथ मैंने स्टैटिक बुक बहुत अच्छे से पढ़ ली थी और फिर साथ में मैंने टेस्ट भी दे दिए थे। और फिर क्योंकि SFG में PYQs भी होते हैं तो वो भी एक बार कवर हो जाता मेरा अच्छे से। उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड जब एग्जाम से 10-15 डेज बचे होते हैं उस टाइम पे मैंने PYQs ही पढ़े बहुत अच्छे से। फिर उस टाइम पे टेस्ट और स्टैटिक रिवीजन थोड़ा सा कम कर दिया है, बिकॉज वो UPSC की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा यूज टू होना जरूरी है एग्जाम से पहले। निखिल, आप ये मानते हैं मोर और लेस कि एक बार अगर प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है तो फिर शायद अगली बार उतना प्रयास नहीं करना पड़ता प्रीलिम्स के लिए? यस सर, बिल्कुल मानता हूँ मैं। 2024 अटेम्प्ट में मैंने 5 महीने दिए थे और 2025 में, बिकॉज 2024 में मैंने इंटरव्यू दिया था तो टाइम थोड़ा सा लिमिटेड था मेरे पास, बट उस लिमिटेड टाइम में भी मैंने अच्छे से यूज़ किया और बहुत ईजिली प्रिपेयर हो गया कंपेयर टू जितना 2024 में दिया था। मतलब यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, बट एक बार आइडिया रहता है, स्टैटिक बहुत बार रिवाइज किया होता है तो याद रहती हैं चीज़ें, नोट्स बने होते हैं, तो एक टाइम तो बहुत एफर्ट चाहिए होता है, उसके बाद थोड़ा रिलेटिवली ईजी होता है। यानी कि जिस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो उसमें आप हार्डली 2 महीने करीब दे पाए होंगे प्रीलिम्स के लिए। तो आप कई बार ये समस्या आप देखते हैं कि जब टॉपर सेलेक्ट होते हैं और जैसे आपने बोला कि इस बार सेलेक्ट हुआ और मैं हार्डली 2 महीने डेडिकेटेड दे पाया प्रीलिम्स के लिए, और जब स्ट्रैटेजी में जब टॉपर्स कई बार ये कह देते हैं कि 2 महीने में हमने प्रीलिम्स प्रिपेयर किया, तो बहुत बच्चे सच में सोचते हैं कि 2 महीने ही किया होगा। तो इस ये जो मिसकंसेप्शन है उसको कैसे दूर करें? और क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट्स का हमेशा ये माना जाता है कि इस अटेम्प्ट में जो किया उसी से सफलता मिली, जबकि इट इज नॉट द लास्ट ब्लो दैट पुट द नेल इन द वॉल, एवरी ब्लो ऑफ द हैमर काउंट्स। तो आपके हिसाब से कितना समय लोगों को चाहिए होता है अगर प्रीलिम्स की तैयारी सही से करनी है? तो सर ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि एफर्ट जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, बिकॉज मैंने पहले अटेम्प्ट में मेहनत की थी तो इस बारे में अब मेहनत लगी, बट उसे एकदम आप ऐसा नहीं मान लेना कि बस मैंने 2 महीने ही पढ़ा है। और बट अगर मुझे लगता है कि अगर 5 से 6 महीने अगर दिए जाए, 5 महीने अगर बहुत शिद्दत से पढ़ा जाए प्रीलिम्स के लिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। और प्रीलिम्स एक बार तो 5 महीने देने ही चाहिए पहले अटेम्प्ट में, उससे कम में तो फिर थोड़ा डाइसी चांस है, एक बार 5 महीने तो देने चाहिए। और ये जो 5 महीने जब आपने बहुत सघन पढ़ाई की तो आपका शेड्यूल किस तरह का था? मतलब कितने बजे उठते थे, कितने बजे तक पढ़ाई करते थे और सोते कब थे, एंड हाउ डिड यू प्लान योर डे? तो मेरा शेड्यूल मोर और लेस सेम ही रहता था। सुबह SFG तो उसके लिए कितने बजे उठते थे आप? SFG 7 बजे होता था, मैं 6 बजे या 5:30 बजे उठ जाता था। एक बार रिवीजन कर लेता था जो SFG टेस्ट में आने वाला है, और जहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ मुझे पता था कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो मैं शायद मिस्टेक कर दूँ वहाँ पे, तो लास्ट में जल्दी से ब्रशअप कर लिया वो। उसके बाद फिर SFG से आने के बाद बस पढ़ना ही था पूरे दिन, बीच में ब्रेक्स लेता था थोड़े टाइम पे, रूम पे बैठ के पढ़ा। जब मुझे नींद आती थी तो मैं सो भी जाता था। मैं बहुत ज़्यादा पावर नैप्स लेता था सर, कि 2-3 घंटे पढ़ लिया तो 20 मिनट के लिए सो जाओ। अगर मैं 20 मिनट उस टाइम पे फ़ोन चलाऊंगा तो मैं फिर टायर्ड ही फील करूँगा, तो आई वुड रेदर स्लीप ऑन एट दैट टाइम। तो यही बस, फिर रात में 11 बजे तक सो जाता था, बिकॉज अगले दिन उठना भी है। आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 6-7 आवर्स, 7 आवर्स तो मतलब आई यूज्ड टू ट्राई। तो ये पूरे टाइम पढ़ना। तो और लगभग कितने 6, 7, 8, 9, 10 कितने घंटे लगभग आपकी सिटिंग आवर्स हो जाते थे करीब? 65% of IS toppers under rank 10 and 20 in CSE 2025 final list have been students of Mains Guidance Program MGP by Forum IS Academy, including rank 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. Mains Guidance Program MGP 2026 to 27. Join Mains Guidance Program, India's most trusted program for mains preparation. To know more about MGP, speak to an IS topper near you or email us at contact@forumis.com. सर सिटिंग आवर्स मुझे लगता है कि वैसे मेजर नहीं करनी चाहिए। तुम कितनी देर पढ़ पा रहे हो उसमें वो ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया है, rather देन कि बुक्स के सामने कितनी देर बैठे हो। तो जिस दिन मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता था उस दिन तो 8-9 आवर्स में भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री फील होता था, तो मैं शायद उतना ही पढ़ता था। बट कभी कभार से ज़्यादा भी हो जाता था
कि बुक्स के सामने बैठे हैं, दिमाग में जा नहीं रहा, तो लंबे टाइम तक बैठना पड़ता था। बट एक चीज़ थी स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर लिया था कि SFG में टॉप 20 टॉप 30 से नीचे रैंकिंग लानी। जिस दिन इससे नीचे रैंक आती थी तो बुरा फील होता था, तो अगले दिन थोड़ा और एफर्ट बढ़ जाता था। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के समय आपने फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई किया, तो व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स फॉर द मेंस एग्जाम? सर फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी। कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स अगर फॉरेस्ट की तैयारी करनी चाहें तो फॉरेस्ट्री और के लिए क्या अप्रोच रहेगा? सर फॉरेस्ट्री रिलेटिवली छोटा सब्जेक्ट है, तो वो 15 से 20 दिन के अंदर फिनिश हो सकता है। सर अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स हैं फॉरेस्ट्री में, और जियोलॉजी के लिए मैंने प्लैनेट जियोलॉजी रेफर किया था। प्लैनेट जियोलॉजी के नोट्स रेफर किए थे बेसिकली, और अपूर्व दीक्षित सर के नोट्स, ये 2 चीज़ें मैंने रिलाई की थी बस। तो अभी जो बच्चे जो सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, अगर फॉरेस्ट के लिए पढ़ना चाहें तो अभी सिविल सर्विसेज मेंस के बाद मेरे ख्याल से 2 महीने का समय करीब रहता है, तो क्या ये 2 महीने में ऑप्शनल्स कर लेना संभव है, या एग्जाम क्लियर करना संभव है, या आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल पॉसिबल है। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 7 आई है इस बार, तो पॉसिबल तो है ही। बट ये है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेंस का हैंगओवर भी होता है सिविल सर्विस के मेंस का, कि इतना पढ़ लिया तो फिर वो पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती नहीं है। बट 2 महीने अगर मुझे लगता है अपने आप को पुश कर लिया तो पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो सिविल सर्विसेज का मेंस देने के बाद, क्योंकि आप दे रहे थे और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दे रहे थे, तो मेंस देने के बाद बर्नआउट सबको होता है, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा कि आगे कंटिन्यू करने के लिए? सर आई डेस्परेटली नीडेड दिस। मेरा ये था कि इस बार सर्विस चाहिए मुझे, बिकॉज ऑलरेडी सिविल में मेरा 4th अटेम्प्ट था ये, तो आई नीडेड टू गो टू लवासना। तो मैंने अपने को समझा दिया कि इस साल मुझे सर्विस चाहिए, तो आई पुश माई सेल्फ जितना हो सकता था, और थोड़ा अकेले रहा। जितने भी दोस्त एंजॉय कर रहे थे मेंस के बाद, उनसे थोड़ा सा दूर रहा, कॉन्शियसली डिसाइड किया से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर हो गया ताकि डिस्ट्रैक्शन फील ना हो। और फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आपसे मैं मिलने आता था बहुत बार, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था 2-3 दिन, फिर मैं सर के पास आता था, फिर इतना मोटिवेट हो जाता था। फिर ये सब चीज़ें सर, बहुत अच्छे मेंटर्स, पेरेंट्स सपोर्टिव, फ्रेंड्स सपोर्टिव। सीसेट के लिए क्या अप्रोच था? क्योंकि सीसेट में भी जो हम देख पा रहे हैं कि पेपर टफ होता जा रहा है, हालांकि आपने टफ ईयर्स देखे हैं सीसेट के इंक्लूडिंग दिस ईयर, तो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर सीसेट पेपर? उसमें कैसे पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप? सर सिंस आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँ कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट मेरी अप्रोच ये रहती थी कि मैं PYQs पे ज़्यादा जोर लगाता था। आई वुड सॉल्व द PYQs, और जो मुझसे क्वेश्चन नहीं होते थे उनकी एक बार अप्रोच देख लेता था कि कैसे हो रहा। बट मुझे उससे भी ज़्यादा लगता है कि एग्जाम में तुम कैसे सीसेट को अप्रोच करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरा ये रहता था कि मैं पूरे कॉम्प्रीहेंशन एक बार अटेम्प्ट कर लेता था, अराउंड 27 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फिर मैं मैथ्स या फिर LR वाला सेक्शन अटेम्प्ट करता था, और उसमें भी मैं मार्क कर लेता था इजी क्वेश्चन। सो आई वुड गो थ्रू द एंटायर पेपर एंड आई वुड मार्क 15-20 क्वेश्चन जो बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस इज मोर इम्पोर्टेंट इन सीसेट, मुझे लगता है। फोरम IAS के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे, वो सेलेक्ट हुए थे उस साल, तो उन्होंने मुझे बताया था। और साथ में सर यूट्यूब में मैंने आपकी वीडियोस भी देखी थी बहुत ज़्यादा, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था। तो SFG प्रोग्राम के बारे में मुझे आपकी यूट्यूब वीडियो से और अपने फ्रेंड से मालूम पड़ा था। ही इज़ एन IPS नाउ। सो अभी बच्चे बहुत परेशान हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी टफ हुआ है, और कुछ बच्चों का जब उस सिचुएशन में होंगे जब आपका पहली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू देम? सर आई वुड सजेस्ट देम कि थोड़ा सा टाइम लो, आइडेंटिफाई कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन जस्ट गो थ्रू द स्टैटिक और उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बिकॉज मुझे लगता है अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं स्टैटिक में प्रॉब्लम है। तो रेगुलरली टेस्ट दो, SFG कैन बी अ गुड वे टू कंप्लीट द स्टैटिक सिलेबस एक बार, और उसके बाद फिर CSET तो भी निगलेक्ट नहीं करना है इस बार, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त जो हैं वो CSET उनका क्लियर नहीं हुआ। तो आई थिंक CSET और स्टैटिक ये दोनों चीज़ें अच्छे से कर लो तो प्रीलिम्स वुड बी टू लो। तो MGP के बारे में आपको कैसे पता चला, और हाउ मतलब फार डिड यू फील? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चे जो MGP में कम्पीट करते हैं तो उसके बाद फॉरेस्ट का मेंस, थोड़ा आंसर राइटिंग हम कोशिश करते हैं, सिखाते हैं ताकि फॉरेस्ट का मेंस आसान हो जाए और कुछ करना ना पड़े। तो हाउ डिड यू नो अबाउट MGP, और आपको कैसा एक्सपीरियंस था आपका MGP के साथ? सर MGP वही मेरे फ्रेंड से मालूम पड़ा मुझे, सेम फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। और SFG किया था तो वहाँ पे भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बंदे थे जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ था, तो उनकी भी रिकमेंडेशन थी। MGP इज़ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर मेंस। मुझे लगता है कि उसमें जो मॉडल आंसर्स होते हैं उसे मैंने वर्बेटिम याद किया है और अपने आंसर्स में तोड़ किया है। इस बार सर मेरे फॉरेस्ट में 161 मार्क्स हैं GK वाले पेपर में, विच इज़ सेकंड हाईएस्ट इन द कंट्री। तो मुझे लगता है वो MGP के जो कंटेंट जो था वो डायरेक्टली मैं यूज़ कर पाया, और उसका जो आंसर राइटिंग स्टाइल होता है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर पाया।
तो वो MGP इज रियली गुड, स्पेशली उनके जो मॉडल आंसर्स होते हैं। आपने मेंस दिया है सिविल सर्विसेज का भी, फॉरेस्ट का भी, अब इंटरव्यूज भी दिए हैं और अब सेलेक्ट भी हुए हैं। विच पेन डिड यू यूज इन द एग्जामिनेशन फॉर द मेंस? सर आई चेंज देम मैनी टाइम्स। इस बार सर मैंने ट्राइमेट्स यूज़ किया है, उससे पहले मैंने पेंटल एनर्जेल यूज़ किया था। एक बार ऐसा हुआ था 2023 के पेपर में, तो मेरे आपको याद होगा सर कि मैंने आपको एक लंबा सा मेल भेजा था। तो मैंने, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मैंने स्टैंडर्ड सेट किए थे अपने लिए कि मेरे किसी भी टेस्ट में 20 से या 30 से रैंक नहीं आनी चाहिए। तो 2-3 टेस्ट हुए SFG थे, तो उसमें आई स्कोर्ड टॉप 20 या 30 रैंक, और तीसरे टेस्ट में आई स्कोर्ड 400 रैंक। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। तो मैंने आपको लंबा सा मैसेज भेजा था कि सर मुझसे प्रीलिम्स नहीं हो रहा और इतने बेकार मार्क्स आए हैं। फिर अगले ही दिन मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों से फिगर आउट किया कि तो हाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। आई मेड अ चॉइस कि अगले दिन तो मुझे बहुत अच्छी रैंक चाहिए। तो आई वेंट बैक टू द पेपर्स, उन्हें दोबारा देखा कि हाँ मिस्टेक्स हो रही है, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी एक बार दोबारा सोची, पेपर अटैम्प्ट करनी थी। पूरा पेपर में प्लान बनाया, लिखा, सॉल्व किया, और टेस्ट पेपर्स दोबारा दिए जहाँ पे गलती हो रही थी। तो इस सब करने के बाद जो अगला पेपर हुआ उसमें आई वॉज एबल टू गेट ऑल इंडिया रैंक 2 यहाँ पे SFG में। और फिर आपने मुझसे पूछा भी था उस मेल में। तो एक जो चीज़ मुझे लगती है कि बहुत टाइम पे हमारी चॉइस होती है कि अगर हम चूज़ कर लें कि हमें नंबर लाने ही हैं तो वी विल गेट द नंबर। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं बहुत बार कि हाँ लाइफ चल तो रही है ईजिली और सब कुछ हो तो रहा है और कौन सा 100 रैंक भी बुरी नहीं है। तो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है और वो चूज़ करना जरूरी है बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे इतने ही रैंक लानी है और इतने ही नंबर लाने हैं, नहीं आएंगे तो फिर मुझे बुरा फील होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे लगता है कॉन्स्टेंटली मुझे हेल्प की है, और ये जो लर्निंग है वो मैंने मेंस और इसमें फॉरेस्ट में भी अप्लाई करने की कोशिश की है। तो आई वुड राइट डाउन कि मुझे ये चाहिए, एंड जब नहीं होता था वो तो दिल में मतलब फील होता था कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा और एफर्ट डालता था। तो स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट के इंटरव्यू में कौन से पैनल मिला था आपको? अजय सर मिले। मार्क्स कैसे आए थे वैसे भी? 210 आए थे सर मेरे। व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ योर इंटरव्यू दिस ईयर? बहुत नॉर्मल ही इंटरव्यू चला था मेरा, तो बहुत स्पेशल नहीं हुआ। बस एक चीज़ थी जो चेंज की है मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस बार, और मैं थोड़ा सा उसमें डिटैच मोड में चला गया था कि सिविल में इतनी मेहनत थी उसमें हुआ नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी। तो अब जो भी हो रहा कॉन्फिडेंस से बोलेंगे और थोड़ा सा काम रहेंगे, तो ये चीज़ शायद मेरे लिए होती है। बस आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी काम। और इस एग्जाम में आपने थोड़ा इतना समय दिया, तो व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन लाइफ? सर लोएस्ट पॉइंट मेरे लाइफ के मतलब प्रिपरेशन के 2 हैं यहाँ पे। तो पहला जो था वो था 2023 में प्रीलिम्स ना होना, और फिर दूसरा जो था वो 2025 में फाइनल सिलेक्शन ना होना। बिकॉज आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग अ रैंक इस बार, और बहुत एफर्ट भी किया था बट नहीं हुआ। तो आई हैड गिवन अप वैसे। तो मैंने फॉरेस्ट का मेंस लिखा हुआ था, बट उसके बाद तो मैंने सोचा था कि फॉरेस्ट भी नहीं हो रहा, जब सिविल में इतनी मेहनत की है तो फॉरेस्ट ऐसे हो जाएगा। मतलब फॉरेस्ट में तो इतनी थी भी नहीं मेहनत, और इतना टाइम भी कम था, 2 महीने का टाइम था। बट फाइनली लक डिड वर्क। आपने मुझे बोला था एक बार कि निखिल तुम टॉप रैंक से निकालोगे फॉरेस्ट। उस टाइम पे सर मुझे बिलीव नहीं हुआ था, और बस व्हेन आई सी द PDF आई फील रियली ग्लैड कि भाई थोड़ा मैंने एफर्ट दे दिया उस टाइम पे। और रिजल्ट किसने खुद देखा था रिजल्ट, या किसी ने देखकर बताया था? हुआ ये तो सर मेरा एक फ्रेंड ने मुझे PDF भेज दी थी, और रिजल्ट से थोड़ा पहले ही भेज दिया था, लिंक जनरेट हो जाता है ना, तो उसके थ्रू। तो उसने PDF भेजी पर उसमें लिखा नहीं नीचे कि कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल या फिर ऐसा कुछ। तो आई थॉट मेरा नहीं हुआ। मैंने बड़ी उदास मन से PDF खोली थी, इस बार भी नहीं हुआ। आई टाइप माई रोल नंबर एंड देयर इट वाज निखिल यादव, ऑल इंडिया रैंक 36। तो बहुत टाइम तो बिलीव नहीं हुआ, उसे बहुत बार फ़ोन किया कि PDF सही है ना। फिर जब फाइनली बिलीव हुआ तो मैंने पापा को फ़ोन किया। तो वो जो फ़ोन कॉल थी सर, मतलब मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था अभी तक। तो मेरे पापा तभी एक्सप्रेस नहीं करते बहुत अच्छे से, तो उन्होंने मुझे कम से कम बस 20 बार थैंक यू बोला था सिलेक्शन के बाद। ये उनका एक्सप्रेशन था भैया। तो सर वो फीलिंग जो होती है ना कि मैं 4 साल से उन्हें बस फ़ोन करके यही बोलता था कि इस वाले में रह गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ या फिर मेंस नहीं हुआ, मतलब मेंस हर बार हुआ, सॉरी प्रीलिम्स नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू नहीं हुआ। बट इस बार जब मैंने बोला जी पापा हो गया है और ऑल इंडिया रैंक 36 आई है, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मुझे याद है कि आपका पहला ही फ़ोन था जब रिजल्ट आने के बाद, तो आपके फ़ोन कॉल से मुझे पता चला कि फॉरेस्ट का रिजल्ट, और जब आपका फ़ोन आया तो मैं समझ गया था कि फॉरेस्ट का रिजल्ट आ गया है। थोड़ा डरा हुआ था मैं कि सो आई थिंक मैंने भी आपको उस समय थैंक यू ही बोला था शायद। हाँ चलो, वंडरफुल। Forum is starting a residential program and specifically designed for those students
who didn't clear prelims earlier. At that moment, I felt that this program is tailor-made for you because what you described in that email, it felt like somebody was describing me. नहीं सर, मैंने नहीं बनाया, ये मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, आपने बनाया है, मैंने उसको गाइड किया है बस। और हर माता पिता करता है ना, कौन नहीं करता है सर, कौन नहीं चाहता है सर। Fortunately, sir, I cleared prelims, and then, sir, the same schedule for mains FRC4 started at the same place, and again I made the same promise. चाहे वो AWFG का टेस्ट हो या SFG का हो या करंट अफेयर्स की क्लास हो, I'll do it, सब कुछ करूँगा जैसा जैसा मुझे बताया जा रहा है, and fortunately it worked again. Then I stayed there for interview also, and fortunately I got the rank. And before coming to FRC, literally there was a lot of broken confidence, and I thought I would never be able to clear pre. This is the biggest hurdle of my life. But then, ever since December, things changed, and I just followed the plan to the hilt. Gave every test, even the open test, all the simulators, the CSAT simulators also. It was for the first time that I cleared the prelims, I cleared the mains, and then I cleared the interview and finally got a job under Government of India. I was a part of FRC1 and FRC4. So I think FRC played an instrumental role in making me what I am today. So I was scared, very honestly. I think a lot of my motivation for so many things is just a fear of failure. I'm not sure what a therapist or a psychologist might say about that. मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मैं गाज़ीपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। मैं ऐसे पेशे से डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखी है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरी 301 रैंक आई है UPSC CSE 2025 में। So first is a sense of discipline, whether that's SFG or in sometimes that I followed in AWFG also for the mains part. A sense of discipline that this is the target for the day. You got to complete your syllabus, immaterial whether you're completing 80%, 70%, 100%, but you have to come up, show up every day and write the test. Many congratulations to all of you who have cleared the prelims. Let us give them a big hand. I subscribed to the second level of SFG. I think I told you so. I had gotten to know about sir from a very close friend, which was honestly like my paradigmatic change, if you will call it, towards prelims preparation came when I heard sir speak on prelims. 65% of IS toppers under rank 10 and 20 in CSE 2025 final list have been students of Mains Guidance Program MGP by Forum IS Academy, including rank 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19. Mains Guidance Program MGP 2026-27. Join Mains Guidance Program, India's most trusted program for mains preparation. To know more about MGP, speak to an IS topper near you or email us at contact@forumis.com.